is very low, bro. Is it better now? Still, I'm unable to hear your voice. Is it? I think I'm in the proper network area. Not sure. I cannot drop. Right, right, right. But I I, am I think unable to during hear the you. course of time, most of the time you'll be speaking, and meanwhile, I think I'll make you understand. I think uh, voice would be clear, I guess, right? But it's very low. It's very low. Okay. So, Meet, if Am you are I able, audible to you properly? you are loud and clear. I can hear you properly. So, not sure the voice issue is with. You are not able to hear properly, or it's with the No, no. I audience am able also. to hear you properly, but the level of volume is not there. It's Okay. very low. Okay, never mind. We have to manage with that, and I guess Okay, not an issue. Not an issue. I'll manage. somebody from the audience can also confirm whether they can simply like show a thumbs up if my voice is properly audible to them. I guess the issue with your network, Prince Bhai, it's very No, low. no, Meet maybe something on the Twitter end, but the audience are able to hear me as well. So I think if I'm audible to you even in low voice, we Ha, can ha, it's okay. It's okay. do I'll that. manage. I'll manage. Great, great. So Meet, let's wait for 1 or 2 more minutes so that people settle down, and then we start with this session. And prior to the beginning of this session, so obviously most of the audience join us on regular basis, so uh, they know us well. So guys, this is again our second session with Meet Shah. He's an individual investor and very passionate about equity markets. So over the course of this session, we'll be knowing his approach to allocation, diversification, and how he is placing himself in current market situation, and which sectors he believe that are looking good from value point of view, and how we can make big money. So we'll try to make this session as interactive as take once I have initial set of questions from my end, and then the floor will be open for questions. So you guys can also send in a speaker request, or the comments are always open. So, with that, and again, whatever we would be discussing in the session will be purely educational. We are not SEBI registered. So, if any names are being discussed, you can fairly assume that we are biased and the views are strictly individual. So, you have to take that with a pinch of salt. So, Meet, Of course. we can start. You can tell us a bit about you and broadly like how you are seeing the current market outlook. So first of all, thank you, Prince Bhai, for inviting me once again on your spaces. And I am a businessman from Gujarat. I run my own individual plastic manufacturing units in Surat, Gujarat, and I am equally passionate about equity investing. So your question is on the market outlook, right? Yes, Meet. Okay. So I feel the market is on steroids, man. Especially the small and micro space. Uh, I do believe large caps market leaders are yet to participate meaningfully in this rally, but still, I believe there is a high froth in few counters where companies are raising funds from left, right, and center. So, if you go back in history, whichever sector uh, is the flavor of the market receives highest amount of funding. Like back in 2008 in cement sector, if you see the cement sector got consolidated and the top five players then were accounted for almost 50% of the capacity. So we all know fragmentation reduces the pricing power and consolidated operations improves efficiency apart from providing pricing power. So cement sector witnessed one of the highest capex during that time. So demand has surpassed the supply resulting in price rise. Almost
all the players, all the players got lined up for capacity expansion and were doing capex. So few years down the line, if you see how many were able to receive even desired capacity utilization, right? From a high growth industry between 2005 to 2010, I guess. And then uh, it got muted demand for like in a single digit. The industry got plagued by overcapacity. Same happened in 2017 in tire industry. Almost same thing happened in few years back in chemical space. So even promoters know that in bad market they won't get easy funding, right? And in good market they take the best advantage of this funding scenario. So it's not about capex. My point is it's about capacity utilization. It's about industry tailwinds and earnings longevity. So now the question comes, then how to play in this market? So there are two ways to uh, play this kind of capex cycle. First, track the companies or the sector who are doing capex, right? And second, go for proxy plays. So this will give you clear idea about how to go in this cycle. Like playing proxies has their own set of advantages as well. Most of them won't get premium valuation like B2C players get, but you will get a fairly clear picture about their balance sheet and order book and cash conversion cycle. So you will have a fairly good idea about exits as well in this thing, because most of them works on advance orders. So you will have 2 to 3 quarters of time to see the slowdown effect. So you get a fair picture of exit as well. So overall market looks good for longer term, but there are a few pockets where manipulation is happening, clear cut overvaluation. So this is the best time I think to sell your mistakes. So if I recall, in way back in March 2020, market crashed. Then you know who were the buyers? Promoters. Who all are selling? Retailers. And currently, the highest amount of selling is done by promoters, right? Either through stake sale or by any means. So who is buying? Retailers at very high valuations. We were taught in our school that it's very important to value your equity, right? Equity is the precious thing. And now highest number of QIP is happening. Promoters who are not diluting their equity are not getting much media hype as well, right? I'm not saying dilution is bad. Dilution and getting growth capital is equally important for your company's growth. But good businesses doesn't always mean good investment if they are not available at fairly good valuations, right? So we need two things. We don't want valuation comfort. We want valuation comfort plus triggers. We also don't want growth triggers. We want growth triggers plus execution. So if we get a sweet combination of this, then I think we have a fairly good chance to do good in this market. So overall, the market looks good for longer term. But if you can switch your positions from frothy counters where there is clear cut overvaluation of 3 to 4 years, so I think it will be good for you to switch something. So that's my understanding. Great, Meet. Very pertinent point. So these 2 points which you just pointed out, would like to talk more about it. So valuation, comfort, but triggers, right? Yeah. So can you uh, explain this more with an example wherein not necessarily any present investment, maybe something in the past also, so that we can also relate to how we can take advantage of this, and parallel to that, that growth triggers and what was growth triggers plus, Execution. yeah, execution. So both the points can be covered with example, would be very helpful for our audience. Yes. So way back in 2017, 2018, if you see the BSC market cap, it was around 1800 crores. And the cash and investment, if you see on the books, it is around 2200 crore. The stake in CDSL,
the investments which BSE is making, the cash flows which BSE is generating, the buybacks, the dividends which BSE is throwing. But the growth triggers were not there. It was just a value buy, right? But nobody in the world could have imagined that BSE can run up like this. There are few triggers which made it possible, and that specifically happened post COVID, like opening up the up of more demat accounts. Companies are getting listed. Okay, the cash flows are coming nice and quick and fast. So if you get some valuation bet where you see there is some cash flow, free cash flow element present, then you can always keep such companies in your watch list. So what will happen if if any time during the course of 4, 5, 7 or 10 years a trigger will come, and that trigger will lead and read the entire stock. See, BSE was not a bad company. Okay, it was just that its insurance arm is not firing up. He has spent 3 to 5 years just for that mutual fund arm, right? And then suddenly NSE started that doing that thing for free. So your 3 to 5 years got wasted. But organic triggers were there, and because of such organic triggers, the stock got re-rated. So the question is, if there is a mix of old school plus triggers, then you will get some some good bets where you have the margin of safety, and where you can easily wait for a few years for the stock to re-rate, and that will give you a peaceful sleep as well, because these are the companies which are not going to go out of the market easily anyway. When so it's all about opportunity cost. So if you have time, if you can wait for a few years, then of course this thing can give you multiple X returns. So meet at this point in time, कोई इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ब्रॉडली? अगर कंपनी नाम ना भी लेना चाहो तो कुछ सेक्टर या ऐसा जहां पे ओल्ड इकोनॉमी हो और कुछ टेलविंड्स या ट्रिगर्स आपको दिख रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड? ओल्ड इकोनॉमी तो प्रिंस भाई नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्लियर कट ओवर वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन कंफर्ट इतना मार्केट में नहीं है. बट आई लाइक अ स्टॉक कॉल एमपीएस, राइट? अब इट इज नॉट available at a cheap valuation. Neither I can say it's expensive according to me. It is fairly available. Valuations are fair, not so cheap, not so expensive. But this company has growth legs, organic and inorganic as well. Throws tons of cash flow, free cash. Do acquisitions, and I think this company can do really good. And if you see the promoter, the fire and the hunger and the track record of the promoter, and the way he has executed, and he's changing his policies, if you listen to him, it's fantastic. Yeah, I mean, I like such promoters. Yeah, there are a few doubts that why organic growth is not coming, but this thing takes time. It's not easy to turn around any company. Old habits die hard. So even if you acquire a company, the employees are habituated कि वो अपने काम को जैसे कर रहे थे वैसे करे. So it's not easy to turn around the company, but they have successfully executed many things in their past. So I think the company is on a good footing. The base is मतलब base got made. अब सिर्फ बिल्डिंग बनाने का बाकी है. I may go wrong. This is not a recommendation. I'm just there's a disclaimer. I'm just sharing it for educational purpose. But I like such kind of things where the company is throwing free cash and using that to buybacks, dividend for acquisition. So these are the companies where you get a peaceful sleep, where you are sure that you are not going to go out of the business easily, where you know that business tailwinds plus promoter is the main guy, is the main element which is running the show. So in this thing, there are not too many moving parts. Like there are too many moving parts in chemical business and textile business. So in this kind of business, there are not too many moving parts. आपको बहुत 3-4 फंडे पे बॉस फोकस करना है, और अगर वो वर्क कर गया तो आपका काम हो जाएगा. 2 चीज से काम होता है.
आइदर धंधा आइदर बंदा, अगर दोनों मिल जाए तो भाई आपका ठीक ठाक काम हो जाएगा. सो दीज आर द बिजनेसेस वेर आई फील ग्रोथ ट्रिगर्स आर देयर. तो मीत भाई, अभी जो आपने पॉइंट्स बोले उसपे मुझे एक नाम आता है, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट वहां पे नहीं है, तो ऐसे में कैसे डील करा जाए? जैसे जो सीएनसी कंपनीज हैं उसमें आप देखेंगे, और स्पेसिफिकली अगर मैं मैग पावर की बात करूं तो उनके प्रमोटर हैं बड़े, मतलब बारीकी से उस धंधे को समझते हैं, और जहां तक मतलब इंटरव्यू से मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके आंसरिंग करने की कैपेबिलिटी समझ पाया हूं, तो मुझे बहुत सॉलिड लग रहे हैं, बट वैल्यूएशन कंफर्ट कहीं पे भी नहीं है. And as a disclosure, I do not have that stock. So just for the sake of discussion of CNC space, I am asking this question. राइट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जनरली ऐसे टाइप के मतलब जो स्टॉक मुझे ओवर वैल्यूड लगता है उसको मैं बाई नहीं करता. बट थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है लेकिन लॉन्जिविटी भी अच्छी है, तो आई डू एसआईपी इन सच स्टॉक्स. जैसे कि इफ आई से सीडीएसएल, अभी मीनिंगफुल पोजीशन इतना बड़ा नहीं है, बट आई डू एसआईपी बिकॉज मुझे पता है लॉन्जिविटी लंबा है, बट वैल्यूएशन इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. सो इन दिस मार्केट हाई वैल्यूएशन कैन गो टू हायर वैल्यूएशन, और 3 साल तक स्टॉक मतलब कुछ करे ना और अर्निंग्स बढ़ता जाए तो डी रेटिंग हो जाए. तो आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट. सो इट्स वेरी मतलब क्लियर फ्रॉम माई एंड, आई वांट लॉन्जिविटी, राइट. एंड इफ आई गेट अ लॉन्जिविटी इन एनी सेक्टर इन एनी स्टॉक, अगर वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है देन आई डू एसआईपी. और अगर वैल्यूएशन कंफर्ट है तो एक या दो ट्रांचेस में आई कंप्लीट माई बाइंग. तो दिस इज हाउ आई अप्रोच. एंड आपका क्वेश्चन है मैक पावर सीएनसी, तो जनरली आई अवॉइड. अगर मुझे लगता है कि 2 to 3 years का पे है और उसमें मुझे ओवर वैल्यूएशन मिल रहा है, तो आई लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज. यार मार्केट इतना मतलब स्मॉल एंड माइक्रो कैप इफ यू डू स्कटल बट, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है. तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि यू हैव टू go for any overvalued guy if it's even if it's growing well. You can find reasonable guys at reasonable valuation where you have some valuation and execution comfort. So this राइट. is my take. तो मीत, बहुत से लोगों का एक कॉमन सवाल होता है, ऑल्दो आजकल आइडियाज की कमी नहीं है, बट अगेन कौन सा आइडिया पिक करना है, कौन सा पास करना है, नॉइज और एक्चुअल अच्छी इंफॉर्मेशन के बीच में सेग्रीगेशन करना इज इंडीड अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन दीज डेज, स्पेशली जब सोशल मीडिया और सब कुछ है. तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रहता है यार? देखो, स्मॉल और ये माइक्रो कैप सबकी एक्सेस नहीं होती है, बट देयर हैज टू बी समवेयर जहां से आइडिया है, उसके बाद ही आप उस चीज में. तो आइडिया जनरेशन कहाँ से, कैसे, क्या होता है? Sir, the base of my idea generation is I should have some kind of history, some kind of execution history होनी चाहिए मेरे पास. तो if I go with my portfolio construct, then 60% of my portfolio is with market leaders where duopoly is there और dominant franchise is there. जैसे NSC हो गया, BSC हो गया, IEX हो गया, CDSL हो गया, कार्गो हो गया, कैम्स हो गया, यू नो IEX है, ITC है, नेस्ले है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है. मतलब मोस्टली ये सब ऐसे स्टॉक्स है कि जो डोमिनेंट फ्रेंचाइज है, या तो फिर जो भी हूँ जैसा भी हूँ मैं ही मैं हूँ. मतलब ऑलमोस्ट सारा मार्केट शेयर मेरे पास ही है, राइट. तो ये सब स्टॉक्स में मुझे इतना मतलब आइडिया जनरेशन के बारे में सोचना नहीं पड़ता. दे आर इजीली अवेलेबल, देर आर इजीली अवेलेबल रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन द स्टॉक्स. सो वहां पे एक वॉच लिस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4-5 years में बन ही जाता है. एंड एवरी ईयर मार्केट गिव्स यू सम अपॉर्चुनिटी. एक या दो स्टॉक होते हैं जो आपको ऐसे सब में अपॉर्चुनिटी दे देंगे जहां आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओ. एक टाइम पे नहीं बनेगा बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका अच्छा पोर्टफोलियो इसमें बन सकता है. एंड द रेस्ट 30% में आई डू स्पेशल सिचुएशन. तो वहां आइडिया जनरेशन हो जाता है अनाउंसमेंट से. जैसे कि ओपन ऑफर हो गया सर, तो ओपन ऑफर में इफ आई सी अ कंपनी लाइक सफारी, सुधीर जाटिया acquired the company, VIP promoter, same industry, 15-20 years of experience, 15-20 years of runway, uh, acquiring the company, putting almost 80-90% of its capital in the company, 40-42 years of age, so not overly matured or not young enough to you know give aggressive guidance. तो इट्स लाइक एक फेयरली मेच्योर पिक्चर आपको मिल जाता है.
Then if you go by MNC, then Kubota announcement आया था, Kubota is going to acquire Escorts. तो वहां पे दो प्ले मिल गए, एक आर्बिट्राज प्ले मिल गया। 2,000 रुपए का ओपन ऑफर था, शेयर प्राइस कुछ 1700-1800 चल रहा था, तो एक आर्बिट्राज प्ले मिल जाता है। एंड इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ कुबोटा इन जापानीज मार्केट, द मार्केट्स वर फेयरली स्टेबल, अंडर परफॉर्म ही कर रहे थे पिछले 25-30 साल से, राइट। एंड वहां पे ये कंपनी ने ग्रोथ निकाला है। तो इफ यू सी ग्रोथ मार्केट में कंपनी क्या ग्रोथ निकाल के दे सकता है आपको, तो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता है स्पेशल सिचुएशन में, एक लॉन्जिविटी वाला बैट भी मिल जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको देखते हो। जैसे बेस्टिल लॉजिस्टिक्स है, तो संजय गुप्ता अक्वायर्ड दैट कंपनी, अपोलो ट्राइकोट, राइट। देन इट गॉट मर्ज विथ APL अपोलो। जैसे एक कंपनी है साल स्टील करके है, तो साल स्टील का आज भी आप अगर मार्केट कैप देखो तो द मार्केट कैप इज बिलो 200 करोड़, राइट। और अगर आप 2022 में आई गेस एक अनाउंसमेंट आया था, तो इफ यू गो बाय द अनाउंसमेंट, वहां पे द कंपनी एंटर्ड इनटू सप्लाई एग्रीमेंट फॉर 3 years विथ AIA इंजीनियरिंग। तो AIA इंजीनियरिंग का कुछ तब का मार्केट कैप 20-22 हजार करोड़ था। तो इतना छोटा कंपनी 80-100 करोड़ का, AIA इंजीनियरिंग उसके साथ कुछ सप्लाई एग्रीमेंट कर रही है, और उसको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट भी 125 करोड़ का मिल गया था AIA इंजीनियरिंग से। तो आप देखो विद इन 3 to 4 years द स्टॉक प्राइसेस रन अप बाई 50-60%। तो वहां पे आपका प्री टैक्स अच्छा बन जाता है। So these are some opportunistic plays, you know, where you can hunt such companies fairly from the point of view of an arbitrage as well as longevity। इसमें arbitrage मतलब एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर था तो वो प्ले कर लिया, किसी में लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स होते हैं तो हम वो प्ले कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स, बट फेयरली बेस आइडिया होता है कि अनाउंसमेंट आप पढ़ो, अनाउंसमेंट में ओपन ऑफर हो गया, बाईबैक्स हो गए, तो दीज आर द डीमर्जर्स हो गया, जैसे बोरोसिल का डीमर्जर हो रहा है, राइट। तो दीज आर द काइंड ऑफ वेज आई जनरेट माय आइडिया। एंड अभी करंटली तो 2-3 साल से तो मैं रेगुलेशंस पे भी फोकस कर रहा हूँ। सो वेरेवर अंबानी एंड अदानी इज एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटी, वहां पे आई एम एक्सट्रीमली श्योर कि भाई कुछ ना कुछ तो ग्रोथ ट्रिगर होगा, बिकॉज दिस कंपनीज आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट एनी इन एनी सेक्टर वेयर देयर इज नॉट यू नो द मार्केट पाई इज नॉट ह्यूज। तो मुझे एक तो पाई यूज चाहिए ताकि मैं बहुत लंबे समय तक ग्रोथ कर पाऊँ। तो ऐसे सारे सेक्टर्स हैं, देयर आर मेनी डिफरेंट आइडियाज वेयर यू नो फ्रॉम वेयर यू कैन जनरेट आइडियाज। जैसे देयर आर फ्यू कंपनीज विच आई फाउंड आउट फ्रॉम लिंक्डइन ओनली। मतलब एक छोटा कंपनी है 100 करोड़ का, और वो अपने पोस्ट भेज रहा है, और उसके नीचे कोई 2,000-4,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी का प्रमोटर इज सेइंग के बेस्ट विशेष फॉर योर न्यू प्रोडक्ट, फॉर योर न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन, the products which we are using in our facility are fairly good। तो भाई 4,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी वाला प्रमोटर लिंक्डइन पे जाके 100 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी को क्यों, कोई मतलब इतना टाइम नहीं है ना सर के उसको मैं जवाब दूं, तो क्यों देगा। तो वहां से एक आइडिया जनरेशन होता है, नॉट नेसेसरली कि उसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, बट एक आइडिया मिल जाता है कि यार कुछ ना कुछ पकड़ा है वहां पे। कंपनी में पहुंच जाओ, उसका डलबट करो, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो सर अनाउंसमेंट्स रीड करो, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ लिंक मिल ही जाता है सर। तो वहां से आई गेट अ फेयर आइडिया कि भाई कुछ पक रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली अनाउंसमेंट एंड सम लेवल ऑफ ग्राउंड रिसर्च विल हेल्प यू जनरेट द आइडियाज। देन इट्स अप टू यू कि आपको आर्बिट्राज खेलना है, शॉर्ट टर्म खेलना है, लॉन्ग टर्म खेलना है, दैट्स अप टू योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल। लेकिन मीत अभी रिसेंट एग्जांपल की भी अगर बात करें तो जैसे जुबिलियंट इंडस्ट्रीज हो गया, या फॉर दैट मैटर शादीलाल और जो त्रिवेणी का हम्म। एक्विजिशन की बात थी, तो बाय द हम्म। टाइम ये न्यूज यार पब्लिक डोमेन में आती है, जब तक तो इनमें इतना रन अप हो जाता है कि बचता ही नहीं। तो जो नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैसे उसमें पार्टिसिपेट करें। और एक ये बहुत बड़ा बायस होता है कि भाई पहले ही दिन मान लो उसने 10-20% का सर्किट लगा दिया, तो उसके बाद सोचते हैं यार और तो चलेगा ही नहीं, और वो डबल हो जाता है। सर वही बात है ना, आप समझो कि कोई कंपनी का प्रमोटर है जिसका मार्केट कैप है 20,000 करोड़, ठीक है। तो 200 करोड़ की कंपनी बाई करेगा 400 करोड़ पे एग्जिट करने के लिए, तो नहीं ही बाई करेगा। अगर वो कॉन कॉल में और एग्जीक्यूशन में
उसकी जो 20,000 करोड़ की कंपनी है वो बात कर रहा है यार 5 साल में मैं इसको डबल कर सकता हूँ, इन्वेस्टर को इसमें अल्फा दिला सकता हूँ, तो खुद के लिए डेल्टा कहां से निकलेगा भाई? ऑफ कोर्स वो स्मॉलर प्लेयर पे अटैक करेगा कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो। तो ये सब स्टोरीज सर 50% 30% पे एंड नहीं होती है। ये सब स्टोरीज अगर आपका क्लिक हो गया तो 10x 50x हो सकता है। लुक एट सफारी, 100 करोड़ पे अक्वायर किया था सर 12 साल में। अब देखो क्या मार्केट कैप है, 10,000 करोड़ ऊपर है। लुक एट आदि फिनकेम, प्रेम वत्सा 2014 में अक्वायर किया था कुछ 900,000 करोड़ पे। प्रीव्यू और फेयरकेम का 2020 के बाद मार्केट कैप देखो क्या हुआ सर। सो दीज आर नॉट प्लेस फॉर 20-30%। अगर आपका व्यू 20-30% है तो सर आपको आर्बिट्राज प्ले करना पड़ेगा, और उसका भी अपॉर्चुनिटी अभी बहुत कम मिलता है। सो यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर उसमें लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स है देन इट्स बेस्ट, एक्सट्रीमली बेस्ट। सर आपको वो पकड़ना है। 20-30% जाने दो। अगर आप 100 रुपए पे कोई कंपनी आपको मिल रहा है एग्जाम्पल, ठीक है, तो 125 रुपए पे उसका कहानी खत्म नहीं होने वाला है। इफ यू थिंक कि 1,000 रुपए तक जा सकता है तो कैसे जा सकता है, क्यों जा सकता है? इनवर्ट, चार्ली मंगर बोलता है ना, इनवर्ट, ऑलवेज इनवर्ट। तो दीज आर द प्लेस फॉर लॉन्गर टर्म सर। दीज आर नॉट शॉर्ट टर्म प्ले जहां आपको 10-20% का, उसके लिए तो सर इतना मेहनत करना ही नहीं है ना। इतना मेहनत करके 10-20% करना है तो टाइम खोटी क्यों करना? वो तो अपने धंधे पे भी ध्यान देके हम कमा सकते हैं। तो वी आर नॉट हियर टू मेक मनी, वी आर हियर टू क्रिएट वेल्थ सर। सो इफ यू फोकस ऑन लॉन्जिविटी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप 4x 5x 10x निकाल सकते हो। लुक एट व्हाट हैपेंड विद बेस्टिल लॉजिस्टिक्स। The company got acquired at around 150-200 crores market cap with an equity infusion of around 100-150 crores. During its peak, it went to around 6,000 crore market cap, and it got merged into APL Apollo at around 5,000 crore market cap, roughly. So, sir, short term नहीं सोचो, long term सोचोगे तो you will get a different picture. तो अभी मीचा कोई नई अपॉर्चुनिटीज एज अ स्पेशल सिचुएशन बकेट में ऐसे आ रही हैं कि जो ऑब्वियसली जो छोटे नाम हो तो वो हम अवॉइड करेंगे, बट ऐसा फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कुछ आपको लग रहा है कि प्रॉमिसिंग है, उसको देखा जा सकता है या स्टडी Sir, किया जा sir, सकता Shadilal is looking very promising according to me. बट ऑफ कोर्स इसका एक टेंडरिंग पीरियड होता है। टेंडरिंग पीरियड एंड होगा, देन वी विल गेट अ फेयर क्लैरिटी कि कौन टेक ओवर, मतलब टेक ओवर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, टेंडरिंग हुआ या नहीं हुआ, या तो फिर इक्विटी डाइल्यूशन करना पड़ेगा, मतलब आई मीन इन्फ्यूजन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो टेंडर पीरियड के लिए तो सर उसका एक टाइम फ्रेम होता है, तब तक आपको वेट करना पड़ता है टू गेट सम क्लैरिटी। अगर सब्सटेंशियल टेक ओवर होता है 50% का, जिसमें किसी को कुछ मतलब आपत्ति नहीं हो, तो आपके पास डे वन से क्लियर कट आइडिया होता है। बट इन दिस थिंग वेर टू फैमिलीज आर इन्वॉल्व, वन इज ट्राइंग टू सेल इट स्टेक, वन इज ऑलरेडी सोल्ड स्टेक एंड अदर इज ट्राइंग टू डू सम फनी थिंग्स, वहां पे यू नीड टू वेट फॉर अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे 20-30% 40% चला भी गया तो सर क्या फर्क पड़ता है? आप समझो यहाँ पे रनवे कितना बड़ा है। इफ यू सी दी bigger player in this industry which is having 3x capacity of Sir Shadi, the company is available at 2,000-2,100 crore market cap, sir. This company is not even at 200 crore market cap. So we need to, you know, build our initial position. See, what I do is, sir, I build my initial position. Then I look for execution. Whether the Triveni guys are, were able to execute the company or not. प्रॉफिटेबिलिटी ले पाते हैं मतलब या नहीं ले पाते हैं। तो धीरे धीरे जैसा आपका फेयर एग्जीक्यूशन आता जाएगा, यू विल गेट a good idea in your mind कि yes, the execution is coming, the stock can re-rate from here. These are not ideas for 20-30%. These are ideas for 3x 4x. So downside is protected, so the downside is around 30-40% and your upside is 300-400% in a very short time frame. So this is the risk and reward in such plays. ऑब्वियसली रिस्क भी रहता है, बट कई बार क्या होता है अमित, एज वी नो द कंपनीज आल्सो ट्राई टू एक्सप्लॉइट द मार्केट कंडीशन। जब यूफोरिया चल रहा है तो यू विल सी अ लॉट ऑफ mergers and acquisitions, buyback, beat split and number of things so as to lure the retailers. तो उस केस में मतलब सेग्रीगेशन ऐसा भी होता होगा, मतलब सारे के सारे आपके इन्वेस्टमेंट सही नहीं जाते होंगे। दैट व्हाट पॉइंट इन टाइम यू ड्रॉ अ लाइन कि चलो अब इससे थ्योरी प्ले नहीं किया, हमें निकलना है। For execution,
इसमें द एंटायर थीसिस इज ऑन प्रमोटर्स, और कोई थीसिस ही नहीं है इसमें। द एंटायर थीसिस इज ऑन प्रमोटर्स एग्जीक्यूशन। अगर प्रमोटर का एग्जीक्यूशन नहीं आता है तो भाई लॉस हो या प्रॉफिट हो निकल जाओ। ऐसे मार्केट में तो बहुत सारी सर मिस्टेक्स किए, उसमें भी 30-40% पैसा 2-2 महीने में कमाया है, बिकॉज द मार्केट इज लाइक दैट। तो जिस दिन यू रियलाइज आपका मिस्टेक है एग्जीक्यूशन में या कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इश्यू है, निकल जाओ। वन सच कंपनी LKP सिक्योरिटीज या कुछ नाम है, आई वॉज प्लेइंग दैट ओपन ऑफर एज वेल। मुफिन ग्रीन का कुछ पता नहीं यार, आ गया निकाल दिया लॉस में। सो एवरी टाइम यू वोंट गो राइट। सिंटेक्स डीमर्जर था, फेल हुआ, कितना गंदा फेल हुआ, मेरा तो बहुत सारा कैपिटल वाइप आउट हो गया। जॉनसन कंट्रोल्स में आई फेल्ड मिजरेबली, हॉरिबली, मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि इतना गंदा एग्जीक्यूशन फेलियर आएगा, इवन आफ्टर डूइंग कैपेसिटी अपग्रेडेशन। तो सर दैट इज वाई वी डाइवर्सिफाई। मतलब वी डोंट नीड टू मतलब 1 2 3 कंपनी नहीं लेनी है, ऐसी कंपनी का एक बास्केट बनाना है 10 से 15 कंपनी का। अगर वो बास्केट आपका सही बैठेगा, आधी कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन जो परफॉर्म 3 या 4 भी कर गई ना सर, दैट विल गिव यू मल्टीपल एक्स रिटर्न। पूरा पोर्टफोलियो का कैगर चेंज हो सकता है, बट यू नीड टू मॉनिटर रिगरसली। ये वो ले बैक वाला अप्रोच नहीं चलेगा इसमें। आपको कंटिन्यूस सारे अनाउंसमेंट पढ़ने पड़ेंगे, पियर्स क्या कर रहा है पढ़ना पड़ेगा, प्रमोटर्स क्या करने की चेष्टा कर रहा है पढ़ना पड़ेगा आपको, प्लांट विजिट पॉसिबल है तो करना पड़ेगा सर आपको। तो दीज आर मतलब नॉट प्लेस वेयर आप शांति से लेके बैठ गए और ठीक है यार 1-2 क्वार्टर ऊपर नीचे आ गया चलेगा, नहीं चलेगा, इसमें नहीं चलेगा सर। आपको इसमें बहुत एक्यूरेट रहना पड़ेगा, आपको इसमें रिगरस मॉनिटरिंग एंड ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। So this is how you can play this bet मेजोरिटी का by the way of diversity. मेजोरिटी का दिक्कत क्या होता है मीत, लाइक देखो जिनके पास ठीक ठाक पैसा है दे हैव फेयर आई मीन प्ले इन द सेंस कि भाई बास्केट बना लिया है 10-15 आइडियाज में अपना स्प्रेड कर लिया सो दैट रिस्क भी मिटिगेट हो गया। लेकिन चैलेंज कब आता है जब यार आपके पास पैसा इतना ही है कि आप 1 या 2 आइडियाज में लगा सकते हैं, तो वहां पे। और दूसरा जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है कि भाई चलो नॉर्मली ये होता है कि भाई इफ ऑब्वियसली जब स्मॉल टिकट साइज है तो बीट एक्सेस टू रिपोर्ट्स और मे बी सीजनड इन्वेस्टर कंपैरेटिवली कम रहता है। वंस यू ग्रो योर कैपिटल एंड नेटवर्क, तो उस चीज का एक एडवांटेज नो डाउट रहता ही है। तो जो इनिशियली आई मीन आपका भी एक्सपीरियंस सिंस यू आर फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, तो एक फेयर अजम्पशन है कि वहां से क्वेश्चन मिलता है कि देयर आर कंसिस्टेंट कैश फ्लोज काइंड ऑफ थिंग। बट क्या व्हाट वुड बी योर एडवाइस कि भाई अगर देखो खाली म्यूचुअल फंड में ना लोगों को थ्रिल नहीं आता, भले ही उससे पैसा बनता होगा, राइट? तो वो कैसे कैसे इस चीज को केटर करे जिनकी कैपिटल लिमिटेड है, या फॉर दैट मैटर दो फुल डे वर्किंग है, इतना मान लो स्कटल बट और मैनेजमेंट को नहीं मिल सकता। एक सेकंड भैया, सिर्फ आरती चल रही है, एक सेकंड होल्ड करो। ओम नमो नारायण। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी एंड सेकंड, सर आपका जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी वैलिड, बट द ओनली थिंग इज आपको डिसाइड करना है कि सर आपको लाइफ में थ्रिल चाहिए या फिर आपको पैसा बनाना है। आपको फटाफट पैसा बनाना है तो उसके रिस्क भी होते हैं। आपका कैपिटल छोटा है, सो इफ यू वांट कि भाई आपका कैपिटल बढ़े, तो नॉट नेसेसरीली कि स्टॉक मार्केट से ही बढ़े, वो आप अपने कैश फ्लोज अपने धंधे से या फिर अपने जॉब से भी बढ़ा सकते हो। स्लो होंगे, बट स्टॉक मार्केट में अगर आप रेगुलर इनकम ढूंढ रहे हो तो वो एस्पेक्ट सर बहुत गलत हो जाएगा। फिर आपको या तो फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा या तो फिर ब्रोकर बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि आपका एक कैश फ्लो आए। अगर आपका कैपिटल लो है, आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट लो है, तो बेटर है आप म्यूचुअल फंड के साथ रहो। कैपिटल लो है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा है, तो फिर ये सब चीज आप कर सकते हो, बिकॉज दीज आर हाईली रिस्की बेट्स। इसमें आपका कैपिटल 30-40% से वाइप आउट भी हो सकता है, और साइकिल सही रही, एग्जीक्यूशन सही रहा तो 300-400% से बढ़ भी सकता है। तो इन माई ओपिनियन इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन रिस्क टेकिंग एपेटाइट। आई हैव मेनी फ्रेंड्स जहां पे यार सबका 100-200 करोड़ का पोर्टफोलियो है, लेकिन उनको रिस्क लेना ही नहीं है सर। दे वॉन्ट फेयर डाइवर्सिफिकेशन विच इज गुड, बट मोस्टली सब कुछ लार्ज कैप्स में लगा के रखा है, तो दे आर हैप्पी विद 12-15% ग्रोथ। एंड आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनका कैपिटल 10 लाख नहीं है और सब एक एसएमई स्टॉक में सब कुछ लगा के बैठा है,
और ऐसा नहीं है ग्रो नहीं हुआ है, 5x भी ग्रो हुआ है एक साल में. सो इट बॉइल्स डाउन टू पर्सनस गोल एंड पर्सनस लाइफस्टाइल कि उसको क्या करना है. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. कोई इसका सिंगल शॉट आंसर नहीं है सर मेरे पास. बट या इट डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टर रिस्क टेकिंग एपेटाइट. Meet like you do all the research on your own, or maybe by talking to the friend circle, or you also like prefer like getting subscribing to good reports, research Yeah, reports. yeah. Because Sir, I do that also. subscribe. मतलब I have subscribed to many मतलब many research analysts. तो few मतलब most of them are my friends. एंड जहाँ पे मुझे जिसका रिसर्च अच्छा लगता है तो मतलब मतलब ओवरऑल आई हैव डिसाइडेड जितना भी पोर्टफोलियो है उसका 2% एवरी ईयर रिसर्च रिपोर्ट एंड स्कटल बट में लगाना है सर, विदाउट अ सिंगल डाउट. तो रिसर्च रिपोर्ट फिर जैसे बेस्टियन रिसर्च है, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब. तो आई एम सब्सक्राइब टू देम. निवेशा ही है अरविंद सर, वी ऑल नो अरविंद भाई बहुत फाड़ू काम करते हैं. सब्सक्राइब्ड. मलाबार है, आई लाइक सुमित नागर, इज अ गुड गाय, आई ट्रैक हिम रेगुलरली. यूनिफाई जी मारन, I track him regularly. So I track these guys regularly, and I have subscribed to many, of their services as well and research reports as well. तो Great. And that's a very good thing for people. Like normally मैंने क्या देखा है मीत भाई, देखो जिनका टिकट साइज छोटा है उनका कंस्ट्रेंट समझ में आता है, एंड दे शुड नॉट बी लाइक होपलेस इन द सेंस, बिकॉज कंपाउंडिंग के लिए भी जो टाइम वाला एलिमेंट है वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा. 5-10 साल मार्केट में आप नहीं लगाओगे तो बड़ा पैसा सोचना थोड़ा आई मीन पॉसिबल नहीं है. कुछ टेलविंड्स में एक आध बंदे का बन जाता होगा बट मेजोरिटी का नहीं बनता है. तो अपनी टोटल कैपिटल का आप 1-2% रिसर्च, और जैसा अमित भाई ने बोला कि स्कटल बट या उसमें स्पेंड करें तो दैट इज वर्थ इट, बिकॉज यू नेवर नो, 1 or 2 गुड आइडियाज इन अ ईयर कैन लाइक मेक यू ग्रेट वेल्थ, और वो जो आपका सब्सक्रिप्शन का पैसा है दैट वुड बी मिनिस्क्यूल इन फ्रंट ऑफ दैट. सो सर मीत एक आइडिया क्लिक हो गया आपका सब्सक्रिप्शन का सारा पैसा निकल जाएगा. सिर्फ एक आइडिया क्लिक होना चाहिए. और अभी तो मार्केट ऐसा है कि सर सारे आइडियाज क्लिक हो, मतलब मोस्ट ऑफ द आइडियाज क्लिक हो रहे हैं. तो आई थिंक इतना तो सर ट्यूशन फी पे करना पड़ता है आपको. अगर आप सोचो कि आपका पोर्टफोलियो मतलब आप सब कुछ अपने से करो तो इट्स वेरी टफ. कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बैंडविथ और दैट काइंड ऑफ टैलेंट. तो आई तो सर जो भी अच्छे 10-15 लोग जिनकी फिलोसॉफी मुझे अच्छी लगती है, आई हैव सब्सक्राइब टू देम. इवन स्मॉल केस भी सब्सक्राइब किया मैंने तो. एंड वहां से आइडिया जनरेशन अच्छा खासा हो जाता है सर, उनके टॉप पोजीशंस को देख के. या तो फिर कॉमन टॉप पोजीशंस किसी में हो तो वहां से एक आइडिया जनरेशन हो जाता है. फिर स्टडी अपनी रहती है, वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, एलोकेट कितना करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन माई ओन स्टाइल. बट यहाँ से एक फेयर आइडिया तो आ जाता है सर, बिकॉज देर आर एक्सीलेंट गाइज आउट इन द इंडस्ट्री. आप सब कुछ नहीं सर ट्रैक करते. फर्स्ट यू नीड टू बी हम्बल इन योर ओन माइंड कि भाई आपसे बहुत कुछ मिस आउट होने वाला है. तो दोज हु आर स्मार्टर देन यू, सब्सक्राइब करो एंड फिर अपनी फिलोसॉफी को ऐड करके काम करो. दैट इज एज सिंपल एज दैट. बिल्कुल सही बात है. और इस चीज को ऑल्दो एंडोर्स करना तो गलत होगा, ऑल्दो पीपल डू दिस कि जब लोगों का कैपिटल साइज कम होता है तो ऑल्दो लीकेज तो देखो रिसर्च में भी होती है, कोई मतलब उनके फ्रेंड्स फैमिली में तो एक्सेस हो ही जाता है. तो ऑल्दो एंडोर्स करना तो गलत है, बिकॉज द पर्सन हु इज वर्किंग हार्ड फॉर दोज रिपोर्ट्स शुड नॉट वांट कि उनकी रिपोर्ट्स को एक बंदा पे करके और 2-3 एक्सेस कर रहे हैं. बट अगेन अगर बहुत शुरुआती दौर है तो मैंने देखा है कुछ लोग मिलके भी करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो बेटर देन लाइक सिंपली इन्वेस्टिंग ऑन टिप्स. और अच्छा मीत भाई, कभी पेनी स्टॉक्स में भी इंक्लिनेशन रहता है, या कभी पहले रहा हो कि पेनी स्टॉक्स में पैसा बनाएंगे काइंड ऑफ थिंग, या हाँ बिल्कुल सर, वहां पे? ऑफ कोर्स रहा है. पर जब भी रहा है ना उसमें पैसा गवाया है, कभी बनाया नहीं है. मतलब कैसे गवाया, दैट ऑल्सो आई टेल यू. पहले हम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना तो बहुत छोटा पैसा लगाते हैं कि 5,000 रुपए लगा दिए या 10,000 रुपए लगा दिया, राइट. अब वो 5-10 हजार रुपए है ना, साइकिल अच्छा होता है ना तो वो बन जाता है 30,000 रुपया. मतलब आपको 4-5x मिल जाता है, राइट. फिर आप एकदम फॉर्म में आके 5-10 लाख रुपए लगाते हो, साइकिल उल्टा हो जाता है और स्टॉक्स आ जाते हैं 50% नीचे. एंड देन कॉन्फिडेंस हिल जाता है.
तो ऐसा सर स्टार्टिंग में मेरे साथ भी 2-3 बार हो चुका है, जहां पे आई हैव लॉस्ट बिग अमाउंट ऑफ मनी। बट धीरे धीरे फिर अक्ल आई सर कि ऐसा नहीं करना है। तो स्लोली एंड स्टेडीली, मतलब पैनी स्टॉक्स हो तो चलेगा, लेकिन पैनी बिजनेस तो नहीं होना चाहिए। बिजनेस में तो हाई क्वालिटी होना ही चाहिए, कुछ ट्रिगर होना ही चाहिए। अगर वो है देन ठीक है, अगर नहीं है तो भाई एट एवरी कॉस्ट, भले वो डेली अपर सर्किट जा रहा है, आपको वॉल्यूम भी मिल रहा है, आई अवॉइड। मुझे वो उस चीज में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, बिकॉज उसमें एग्जिट डोर होता ही नहीं है सर। Fair point. So Meet, 60% is like consistent compounder बोलो या market leaders बोलो, 30% special situation हो गया, तो 10% जो 10% बचा सर वो दस कहाँ परसेंट इज पे? एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो, बिकॉज सीखना बंद तो जीतना बंद सर। आपने आप आपने कोई अच्छा आइडिया दे दिया, मुझे अच्छा लग गया, राइट? तो 1% की ट्रैकिंग क्वांटिटी लेने में क्या जाता है सर, राइट? 10% अगर साइकिल खराब हुई और आधा भी हो गया तो 5% जाएगा। साइकिल अच्छा हुआ तो यार 10% का 20% हो गया, 3 साल में डबल हो गया। तो वो फिर वो 10% फिर से बैलेंस अप्रोच से स्पेशल सिचुएशन में आएगा। स्पेशल सिचुएशन का 30% ज्यादा बन गया तो वो फिर कंपाउंडर्स में आ जाएगा। तो सर इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रिजर्विंग मनी। जो बुल मार्केट में पैसा बनता है तो उसको प्रिजर्व भी तो करना पड़ता है ना। आप सब कुछ सिर्फ ग्रोथ 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 या फिर रिस्क में नहीं लगा सकते अनलेस यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। सो फॉर मी आई यूज बैलेंस अप्रोच। पैसा बना है तो उसको भाई प्रिजर्व भी करो, वहां ठीक ठाक आपको जीडीपी ग्रोथ से डबल का अर्निंग्स आ जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट 2% डिविडेंड येल्ड, तो प्री टैक्स आपका अच्छा 15-16% का रिटर्न बन सकता है। अरे सॉरी, पोस्ट टैक्स आपका, प्री टैक्स आपका 15-16% का रिटर्न बन सकता है। एंड स्पेशल सिचुएशन में सर आपका ऑलमोस्ट 20-22-30% भी रिटर्न बन जाता है। डिपेंड्स कि आपका एग्जीक्यूशन कई 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 बैट्स में ठीक मिल गया आपको तो। सो ऑन ओवरऑल बेसिस अराउंड 17-18% का भी कंपाउंडिंग मिल गया सर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आई एम हैप्पी। ऑफ कोर्स ये मार्केट में तो उससे ज्यादा ही कैगर बना है, बिकॉज मार्केट ही इतना अच्छा रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट आवर टैलेंट और आवर ब्रेन्स, इट्स ऑल अबाउट मार्केट की। मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बट अगर मार्केट करेक्ट होता है तो आई एम रेडी कि मेरे स्टॉक्स यहाँ से 25-30-35% करेक्ट भी हो सकता है। एंड जहां पे मैं लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ, आई वोंट सेल अ सिंगल शेयर, मतलब कोटेशनल लॉस खा लूंगा, ठीक है। बट या आई एम हैप्पी विद 18% कैगार अप्रोच। That's great. तो मीत, अभी कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली जिसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, उसके अलावा कुछ इंक्रीमेंटली जहां पे आपको लग रहा है कि वैल्यू भी है और कुछ ट्रिगर्स भी हैं? ऑल्दो मार्केट मोटा माटी देखोगे तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट हर जगह अवेलेबल नहीं है, बट कुछ ऐसी पॉकेट जहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी वैल्यूएशन कंफर्ट है, या आप वैल्यूएशन प्लस देख रहे हैं कि कुछ ट्रिगर्स हैं, या मे बी कहो कि प्रमोटर की पावर एग्जीक्यूशन और ग्रोथ? सर, पावर सेक्टर अच्छा लग रहा है। मतलब वहां पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं पिछले 6 महीने से। मतलब आई एम स्टडिंग दिस सेक्टर ओनली कि फेयर अंडरस्टैंडिंग आए। बट देर आर मैनी 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 मूविंग पार्ट्स इन दिस सेक्टर। तो एक बार अंडरस्टैंडिंग आए कि फिर ज्यादा में डिटेल में, मतलब वी कैन टॉक ऑन इट। बट दिस सेक्टर लुक्स गुड। Another sector which looks good is renewable space. But of course the valuation has gone over the roof sir. मतलब अभी तो कोई कंपनी को हाथ लगाना इज लाइक प्लेइंग विद फायर। मतलब बाय हायर सेल वेरी हायर, ऐसा हो गया है सर। मतलब वो एक्सपेक्टेशंस आपको रिस्क एपेटाइट रखना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स these आर गुड सेक्टर्स। एंड माय एवरग्रीन सेक्टर इज सर कंजम्पशन। मतलब सर अनादि काल से चलता है, दवा दारू ये सब चलने ही वाला है। रोटी कपड़ा मकान, और अभी का दवा दारू डेटा। तो सर ये सारी चीज में अगर अच्छी कंपनीज मार्केट लीडर फेयर वैल्यूएशन पे मिले तो आई तो बाई। जैसा आईटीसी है सर, पता है वो इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं देगा, ठीक है यार, ₹165 पे बुरा नहीं था, ले लिया। यूनाइटेड स्पिरिट्स ₹500 पे बुरा नहीं था, ले लिया सर। पता है सर ये इसमें रेगुलेशन रिस्क है, बट दिस आर दी, मतलब ये सारी हैबिट्स बार बार चेंज नहीं होती है सर। आप कसिनो में जाओ, आपको नहीं पता है ना कि आप जीतने वाले हो नहीं जीतने वाले हो, बट हाउस ऑलवेज विंस। तो भाई आप एनएससी ले लो, बीएससी ले लो, जहां पे आपको पता है यार कोई हारे जीते आपको क्या टेंशन है सर, मेरा पैसा स्लोली स्टेडीली बनने वाला है, दैट्स इट। तो दीज आर माई एवरग्रीन प्लेस। मतलब एज ऑफ नाउ तो एवरग्रीन किसी को बोल नहीं सकते, चेंजेस कुछ आ सकता है, बट
अभी तक के लिए तो सब ठीक ठाक है सर, और सब ठीक ठाक रहा है। सो इन इन न्यू में मुझे डेटा सेंटर अच्छा लग रहा है। इतनी स्पेसेस भी हुई थी, आपने भी एक आध स्पेस किया था, तो वो सब मैं सुन रहा था, तो मुझे वो अच्छा लगा। स्टिल मतलब इतना कोई स्पेसिफिक बैट नहीं मिला है। आई एम स्टडिंग फ्यू कंपनीज लाइक टेक्नो इलेक्ट्रिक, विजिट किया था उनको। अनंत राजा आई एम स्टडिंग। तो लेट्स सी सर, कुछ निकल के अच्छा आता है मीनिंगफुली, देन विल सी। पावर सेक्टर इज लुकिंग गुड। तो या दिस आर सम सेक्टर्स जहाँ पे स्टडी चल रही है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई अभी। राइट। एसएमई स्पेस में क्या क्या एलोकेशन है मीत भाई, और इसमें कैसे क्या अच्छा लग रहा है कुछ, मतलब या सर भी। एससीमी में तो यार हार्डली 2-3 स्टॉक में एलोकेट किया था, मार भी पड़ा और पैसा भी बहुत बना। तो मतलब फेयर अजम्पशन तो यही था कि बिजनेस में एग्जीक्यूशन आ जाएगा। सर एग्जीक्यूशन तो आया नहीं आज तक, लेकिन प्राइस बहुत रन अप हो गया। तो निकल जाओ भाई, 3 साल का रिटर्न मतलब 6 महीने में मिल रहा है, तो ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ता है, दूसरी अपॉर्चुनिटी में बना लेंगे। तो इतना कोई मीनिंगफुल एलोकेशन है नहीं, 2-3% हार्डली होगा सर। बट दैट इज ऑल्सो कि जहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा था, बट एग्जीक्यूशन नहीं आया, लेकिन प्राइस सारे 4-4, 5-5 गुना बढ़ गए। अब मार्केट की मेहरबानी, निकल जाओ। राइट। अच्छा मीत भाई, जैसे ये कई बार प्रेफरेंशियल्स वगैरह के लिए होता है, तो वहाँ नॉर्मली टिकट साइज थोड़ा रीच के बाहर बड़ा रहता है होता रिटेल की। तो उसमें कुछ ऐसी मतलब लीगल फिजिबिलिटी रहती है कि मान लो कोई किटी टाइप्स, या मान लो 5-10 लोग मिलके उस चीज को पूरा करके, या फिर वो मतलब अनऑफिशियल टाइप हो जाता है, मतलब इज देयर एनी लीगल वे टू डू दैट, और कुछ अगर उस पे आइडिया हो तो दैट वुड बी आल्सो हेल्पफुल फॉर ऑल। है। जनरली तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जनरली अगर कंपनी अच्छा है तो दे विल ओनली एंटरटेन इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, राइट। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर का चांस उसमें कम रहता है। छोटी कंपनी है तो उसमें होता है कि सर सारे मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को चांस मिल जाता है। बाकी इट्स वेरी टफ सर। हाँ, यू कैन डू वन थिंग कि आप वो कंपनी को ट्रैक करो। अगर आपको क्यूआईपी से ऊपर नीचे का रेट मिल जाता है और आपको वो कंपनी अच्छा लग रहा है, देन यू कैन टेक योर कॉल। बाकी इसमें सर कुछ नहीं हो सकता है। इसमें क्या ही कर लोगे सर आप? देर इज नो वे अनलेस यू हैव दैट काइंड ऑफ रीच, दैट काइंड ऑफ कैपिटल टू पार्टिसिपेट इन सच बेट्स। अदरवाइज यू कैनॉट डू एनीथिंग सर। आपको वही देखना है कि भाई 100 रुपए पे प्रेफरेंशियल हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये कंपनी मतलब 100 करोड़ का मार्केट कैप है, 300 करोड़ जा सकता है 50 करोड़ के केपेक्स पे, तो कैसे जा सकता है? एंड एंड अगर अगर आपको 10-20% ऊपर नीचे मिलता है तो यू कैन टेक योर कॉल लाइक दैट। अदरवाइज सर पार्टिसिपेशन में तो आपको अपना टिकट साइज बढ़ाना ही पड़ेगा। पैकेजिंग और प्लास्टिक प्लास्टिक पैकेजिंग वगैरह का जो फील्ड है, सिंस यू आल्सो रन अ सर बिजनेस, आपका वॉइस कट रहा इज इट फाइन नाउ? है। हाँ बोलिए। हाँ, तो जो जो पैकेजिंग का बिजनेस है, तो उसमें कुछ स्टडी कर रहे हो, या उस पे कोई व्यू है आपका? नहीं सर, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं मतलब मैं जहाँ से रिसर्च ले रहा हूँ वहां से भी कहीं कहीं से भी पैकेजिंग कंपनीज पे कुछ मतलब रिपोर्ट आया नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया। और जो ये सिक्लिकल्स रहते हैं, बीट सीमेंट, जो थोड़ा कम सिक्लिकल हो गया है आजकल इंफ्रा की डेवलपमेंट के चलते, या फिर शुगर सेक्टर की बात करें जिसमें भी थोड़ा बहुत इथेनॉल की वजह से मतलब इतना डीप सिक्लिकल नहीं रहा है, एक बार को कह सकते हैं, तो इनमें कुछ व्यू है, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट भी आप करते हो? सर उसमें फिर मैं ट्रिगर्स देख लेता हूँ ना। जैसे त्रिवेणी है तो त्रिवेणी यही करता है, राइट। तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद सर शादीलाल, तो उसमें कुछ ट्रिगर होना चाहिए। अगर कुछ एक्सपोनेंशियल ट्रिगर मिलता है तो प्ले सच बैठ सर शादीलाल मैंने बोला तो त्रिवेणी एक्वायर कर रहा है ना उसको, तो दे आर इनटू दिस बिजनेस। और इक्विटी इट्स लाइक 100% इक्विटी, या उसमें भी कोई एलोकेशन और अपना दूसरे एसेट्स में ना भी? ना सर, 100% इक्विटी इतना जिगरा नहीं है। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, 100% इक्विटी नहीं है सर। 40-60 का रेशियो है, 40% इंटू इक्विटी एंड 60% इन टू अवर बिजनेस। गुड गुड गुड। तो मीत कुछ ऐसा कमोडिटीज में भी अभी आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, या ट्रिगर्स वगैरह, बीट मेटल्स और बाकी? सर आयरन और
अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो आई फील GPIL कंपनी अच्छी लग रही है. आई विजिटेड द कंपनी इज वेरी गुड. एंड आप उनके प्रोडक्ट देखो, जो FE कंटेंट है, दैट इज सुपीरियर टू अदर कंपनीज. The company is executing on the its number, and if you see the iron ore trend, if you see the demand supply gap from China as well, तो आपको पता चलेगा कि this thing can grow big in coming 3-5 years. And जहाँ गवर्नमेंट का टारगेट इज डबलिंग द एंटायर इंडस्ट्री है, तो दिस इज अ गुड प्रॉक्सी टू प्ले द आयरन स्टील साइकिल. तो ये सारी कंपनीज है सर, वेर आई एम इन्वेस्टेड. एंड टन्स एंड टन्स ऑफ फ्री कैश फ्लो. इंटरनल अप्रूवल से केपेक्स होता है. सो बस यू नीड टू जस्ट वॉच ऑन टू थिंग्स: सप्लाई डिमांड, रॉ मटेरियल प्राइजेस, एंड एग्जीक्यूशन. नंबर्स विल कम. टेलविंड इंटेक रहा तो रीरेट हो जाएगा सर. दिस इज व्हाट आई फील. ऑफ कोर्स दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. आई होल्ड द स्टॉक. आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट, जस्ट शेयरिंग दिस फॉर एजुकेशन पर्पस ऑन योर स्पेस. अमित, गोल्ड सिल्वर में भी कुछ एलोकेशन या कुछ लग रहा है? बिकॉज दीज डेज गोल्ड इज डूइंग गुड और सिल्वर की भी बातें बहुत हो रही है, सर वो नहीं समझ में आता है. or any take on the gold companies, the companies which are catering to the gold business, they had done well in the past और उसमें अभी भी ट्रिगर लग रहे हैं, तो कुछ वहां पे भी you have any view? सर वन ऑफ माय फ्रेंड इज कंट्रीज बिगेस्ट ज्वेलर. तो वो मुझे जो बोलता है कि ये लेने का तो आई बाय, वो बोलता है ये बेचने का तो आई सेल. आई हैव नो सच, मतलब मतलब कोई टैलेंट नहीं है कि ये सारी कंपनीज को ट्रैक करूं. बट आई नो कि देर आर गाइज हु आर इनटू दिस इंडस्ट्री एंड हुम यू कैन ट्रस्ट. तो छोटा मोटा 1-2% का एलोकेशन फिल लेते हैं, बाकी आई डोंट ट्रैक दिस इंडस्ट्री. More or less, I have asked. अच्छा, कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो अभी अवॉइड कर रहे हैं? सर करंटली तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते कि ये सेक्टर आप अवॉइड करो, बिकॉज कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रेगुलेशन इम्पैक्ट आ जाएगा एंड दैट बैड लुकिंग सेक्टर अच्छा लगने लगेगा. इससे कितनी बड़ी बड़ी कंपनी सर खड़ी हो गई. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब सेक्टर्स अवॉइड करना है. इट्स ऑल अबाउट वैल्यूएशन. जहाँ पे फेयर वैल्यूएशन, रेगुलेशन सपोर्ट थोड़ा मिले सर, तो वी कैन लुक एट दैट कंपनी. हाँ, बट आई स्पेसिफिकली देर आर फ्यू पॉकेट्स लाइक SME स्पेस एंड माइक्रो कैप्स. वहां पे मतलब 40-50 लाख का धंधा है और मार्केट कैप 300-400 करोड़ पे पड़ा है, तो सर दैट इज श्योरली एन अवॉइड. नॉट सेक्टर वाइज बट कंपनी वाइज, तो सर 100% उसको अवॉइड ही करना है, वह कितना भी अच्छा रिजल्ट लेके आ जाए. राइट. और केमिकल सेक्टर में क्या लग रहा है भाई? मतलब आई फील 2 to 3 क्वार्टर्स ऑफ पेन अभी भी है. उसके बाद सी थोड़ा बहुत ग्राउंड पे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वी विल हैव अ बेटर आइडिया. बट एज ऑफ नाउ द थिंग्स आर लुकिंग ओके. तो यार, जब 2-3 क्वार्टर की विजिबिलिटी पेन की है, तो इज इट नॉट दी गुड टाइम टू स्टार्ट निबलिंग? क्योंकि बाय द टाइम थिंग्स रिवर्ट, तब तक तो फिर एकदम से बट यू सर नो की 2-3 क्वार्टर में तो आपको क्लैरिटी आना स्टार्ट होगा. नॉट नेसेसरी के आ ही जाएगा. जहां पे ऐसा है कि 2-3 क्वार्टर में क्लैरिटी आ जाएगा, आप श्योर हो, तो वहां पे यू कैन मतलब टेक बैट. अदरवाइज यहाँ पे तो सर 1-2% का पोजीशन बना सकते हैं, बाकी आपको ट्रैक करना पड़ेगा. फिर एवरेज अप अप्रोच बहुत अच्छा वर्क करता है इसमें, कि जितनी आपको क्लैरिटी आ गई, भले प्राइस थोड़ा ऊपर है, बट वहां से भी आपको एग्जीक्यूशन ट्रिगर्स दिख रहे हैं, तो यू कैन पे फॉर 1 or 2 year फॉरवर्ड मल्टीपल. तो दीज आर वेरी ट्रिकी सेक्टर. इसमें कभी कभी सर 2 क्वार्टर हम वेट करते हैं, तो कभी 2 साल भी वेट करना पड़ता है. क्योंकि केमिकल सेक्टर में भी सर इट्स नॉट दैट इजी कि आपने आज केपेक्स किया और आपका प्लांट 1-2 महीने में स्टार्ट हो गया. सर जमीन लेना, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना, पेटेंट्स करना, फायर इंसिडेंट ना होना, सेफ्टी रखना, कैश फ्लोज आना, सर इट टेक्स टाइम. तो थोड़ा ऊपर पे कर लोगे चलेगा, लेकिन इतना क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि इसमें पेन 5-5 साल का होता है सर. फिर अगर आपका स्टॉक नहीं चला ना, तो 5 साल का पेन आपको बेयर करना पड़ेगा. तो अगर पोजीशन लेना भी है तो सर 1% ले लो.
आपको 10,000 रुपये लगाने हैं, 1% बाई कर लो अभी। धीरे धीरे करके जैसा एग्जीक्यूशन और अनाउंसमेंट्स आते जाए, ग्राउंड रियलिटी आपको थोड़ी ओपन अप लगे, तब जाके कुछ आप मीनिंगफुल पोजीशन बनाओ। दिस इज हाउ आई प्ले। राइट। और सेल का क्या क्राइटेरिया रहता है मीत भाई, मतलब कोई इज देयर अ सेट प्रोसेस या फिर इट्स ऑल नहीं सर, मतलब सेल में एक सेट प्रोसेस तो कुछ नहीं होता है, बट एनी टाइम इफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ चूक हो गई, या फिर हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट थीसिस था दैट गोज फॉर अ टॉस, तो ऑफ कोर्स आप सेल कर लेते हो। या तो फिर सर बहुत रेयरली ऐसा होता है, यू हैव सम गुड आइडिया विच इज मतलब एक्सट्रीमली गुड, तब जाके आई सेल द स्टॉक। तो दीज आर द फ्यू क्राइटेरियाज जहाँ पे आपको मतलब हाँ, एग्जाम्पल कोई प्रमोटर है, प्रमोटर काम कर रहा है सीमेंट में, और प्रमोटर ने फैक्ट्री डाल दी चीनी की, तो सर वो फिर डाइवर्सिफिकेशन हो गया ना, लाइक पीटर लिंच सेज डाइवर्सिफिकेशन। उसमें सर यू कैन टेक योर एग्जिट कॉल। तो वहां पे दीज आर द क्राइटेरिया, बट वहां जहाँ पे मुझे लॉन्जिविटी अच्छी लग रही है, वहां पे ओवर वैल्यूएशन भी होता है, तो आई कैन वेट फॉर सर मैनी ईयर्स, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट जहाँ पे कमोडिटी प्ले है, वहां पे 3-4 साल का मुझे गेन मिल रहा है, 6 महीने में, 1 साल में छह ऐसे महीने में मार्केट में, वहां पे आई एग्जिट फॉर वैल्यूएशन रीजन एज फॉर वेल। वैल्यूएशन रीजन एज वेल। राइट। सो मीत जैसे पावर सेक्टर यू हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, तो उसमें मतलब डायरेक्ट प्लेस ज्यादा अच्छे लग रहे हैं या प्रॉक्सी प्लेस उसमें सर मतलब अभी के आई लिए? यूजुअली गो फॉर प्रॉक्सी प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्डर बुक एंड बैलेंस शीट कंफर्ट। वहां पे एग्जिट भी थोड़ा ठीक ठाक मिल जाता है, क्योंकि एडवांस ऑर्डर में सब लोग काम करते हैं, तो बैलेंस शीट खराब होनी है तो हेडविंड का इम्पैक्ट भी 1-2 क्वार्टर के बाद ही आता है यूजुअली। तो वहां पे आपको एग्जिट भी अच्छे से लिक्विडिटी के साथ मिल जाता है। तो आई यूजुअली प्रिफर गोइंग विथ यू नो प्रॉक्सी प्लेस। And Meet, अभी के लिए if you see the banks, the top private banks, which if सर you आई एम होल्डिंग compare with एचडीएफसी Sir, I am बैंक, holding इट्स वन ऑफ माय लार्जेस्ट one of पोर्टफोलियो। my largest. आई एम बुलिश। I am bullish. पीवी To be प्रॉफिटेबिलिटी, profit. मार्केट शेयर, सब कुछ अच्छा है। बस अच्छा नहीं है तो सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। जिस दिन वो टर्न अराउंड होगा, यूजुअली वी हैव सीन के जहाँ पे कंपनी ने एग्जीक्यूशन किया है अच्छा सा, वहां पे आफ्टर लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड एंड लॉन्ग पेन एक अच्छा रिटर्न बना है। तो आई एम होल्डिंग, मतलब स्पेसिफिकली बात करें तो एचडीएफसी बैंक, यस आई एम होल्डिंग। आई डोंट सी मतलब एनी I don't रीजन टू see. not hold that bank. But of course, it depends upon your criteria of investment. But yeah, I am holding. I have bought big time. राइट। एंड रिसेंटली आज ही मेरे ख्याल से केटीआर सर का इंटरव्यू था, तो उसमें इफ आई रिकलेक्ट राइटली तो ही वाज सेइंग इवन इन द पीएसयू बैंक्स आल्सो कि ही बिलीव देयर इज मोर वैल्यू remaining in the sense like there could be more rally in those names. So do you buy that statement or you do not track the space? Sir, see, the way I look at banks, that is something differently. Previously, बैंक को बहुत अच्छा प्रीमियम मिलता था, राइट? बिकॉज बैंक्स कस्टमर फेसिंग, मतलब B2C काइंड ऑफ ब्रांड्स थे। अभी B2C में कौन है सर? बैंक से ज्यादा फिनटेक्स है सर। ऑफ कोर्स फिनटेक्स को बैंक के साथ टाइप करके काम करना पड़ता है, बट क्या उनको पहले जैसा प्रीमियम वैल्यूएशन मिल पाएगा? दैट इज क्वेश्चनेबल। सो वहां जहां पे इतने अच्छे वैल्यूएशन ऑलरेडी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसिवनेस, राइट, वहां पे आप कितना री रेटिंग अभी करोगे? क्योंकि आपका टी तो री रेट होने से रहा, जो भी री रेट होगा ई होगा, अर्निंग्स होगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग वैल्यू है, बट गुड बिजनेस डजंट मीन गुड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कितना मल्टीपल आप एक्सपेक्ट करते हो, कितना री रेटिंग एक्सपेक्ट करते हो, इन व्हाट टाइम फ्रेम इन दिस मार्केट, दैट इज डिबेटेबल। So that is why reasonable GARP approach works best rather than high growth, high PE approach in this thing. This is what I feel. राइट। सो मीत इन कंजम्पशन यू वर सेइंग दवा दारू, तो दारू का समझ में आता है, इलेक्शन टाइम भी है, लेकिन दवा में कौन सी सेगमेंट्स, कौन से पॉकेट्स आपको अच्छे लग रहे हैं फार्मा हेल्थ केयर सर में? फार्मा तो समझ में नहीं आता है, बट इट इज जनरल थिंग है, वो चलेगा, बट क्या चलेगा, कैसे चलेगा, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज। बहुत पहले सर 6-8 महीना पूरा बिगाड़ दिया था सिंजिन पे, मतलब अंडरस्टैंड करने में, फिर भी कुछ समझ नहीं आया।
थोड़ी छोटी बहुत पोजीशन भी बना ली, बट कुछ इतना सर समझ नहीं है वो सेक्टर की, तो इतना कुछ डीप डाइव किया नहीं कभी। तो ठीक है, जिनको तो समझ है ठीक है, जिनको समझ है। हाँ, वो उनका पूछ के कर लेने का करना है तो, बट यूजुअली आई अवॉइड, मैंने कभी किया नहीं है इतना मीनिंगफुल वे में। मीनिंगफुल वे में। एंड कैपिटल गुड्स में कुछ अच्छा लग रहा है नहीं? सर कैपिटल गुड्स में तो बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब लास्ट तो हमने कैपिटल गुड साइकिल ही अच्छे से प्ले किया, इसमें अच्छे से प्ले किया, शिवालिक बाई मेटल अच्छे से प्ले हो गया। कैपिटल गुड साइकिल इज लुकिंग, मतलब तो अच्छा ही लग रहा है। जहाँ पे एग्जीक्यूशन, हाँ वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो, थोड़े नहीं मतलब अच्छे खासे महंगे हो गए, लेकिन लास्ट करेक्शन आया उसमें थोड़े ठीक ठाक करेक्शन आ भी गया था 30-40% का। तो द साइकिल लुक्स वेरी गुड सर। एग्जीक्यूशन सिर्फ आना चाहिए सर, बिकॉज अंडर वैल्यूएशन का पार्ट निकल गया है। अभी जो पार्ट है वो पूरा एग्जीक्यूशन है, मतलब द क्रीम पूरा निकल जाए, जो क्रीम खाना था वो 2 साल में जिसने खाया है वो खा लिया है। अभी जो भी आएगा वो अर्निंग्स ग्रोथ से आएगा। सो 3-4 साल अच्छा तीन रहा चार तो साल फिर दिस थिंग कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। और सांगवी हमने प्ले अच्छा किया था, सांगवी हमने प्ले। तो वी बॉट सांगवी, मतलब बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब पर शेयर वैल्यू उसका हमने कैलकुलेट किया तो कुछ 490 या 500 आ रहा था। इफ यू सी दी ग्रॉस ब्लॉक, कंपनी मिल रहा था 150 रुपए पे, और पूरे टेलविंड सपोर्ट कर रहे थे। मैनेजमेंट भी पूरा सब गाइड कर रहा था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग फॉर द ग्रोथ एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग। एंड इफ यू सी पास्ट 10-15 ईयर्स नए क्रेन्स भी मार्केट में इतने आए नहीं थे, तो डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई था नहीं। नया सप्लाई अगर आएगा तो नए स्टील के प्राइस पे सारे क्रेन्स बनते हैं, तो भाई उसमें ही कुछ 40-50% का गैप था। पुराने क्रेन्स कुछ 38-40 हजार के भाव पे पड़े थे, और नए क्रेन्स कुछ मिल रहे थे 60-65 थाउजेंड पे। तो येल्ड भी कम बैठ था अगर आप अभी इन्वेस्ट करते, तो वो एक अच्छा साइकिल प्ले हो गया। तो सर कैपिटल गुड्स एंड प्रॉक्सीज, मतलब अच्छा मतलब अच्छा खासा क्रीम निकल गया। अभी जो आएगा मेरे ख्याल से वो अर्निंग्स री रेटिंग से ही आएगा। वो टर्न अराउंड वाला ट्रिगर निकल गया है मोटा माटी। राइट। और जो ईएमएस स्पेस है मीत, उसमें क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि वहाँ मार्जिन्स तो बहुत स्क्यूड हैं और वहाँ सारा स्केल का या वॉल्यूम का गेम है, तो वहाँ पे लग रहा है कि पैसा बन सकता है। और सीइंग द वैल्यूएशंस, वहाँ पे हाथ लगाना ठीक नहीं है इस पॉइंट पे। सर मेरे ख्याल से तो द स्पेस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब यहाँ से भी बहुत बड़ा हो सकता है। बट अब कौन मार्केट शेयर कैप्चर करेगा इसमें, दैट्स वेरी टफ टू से। बट ऑफ कोर्स दिस स्पेस लुक्स एक्सट्रीमली मतलब सुपर हॉट, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्टडी भी किया था 4-5 कंपनी के, सिरमा सारी स्टडी भी की थी सर। बट ऑफ कोर्स वैल्यूएशन ऑन हायर एंड, तो ज्यादा मीनिंगफुल एलोकेशन नहीं कर पाए। बट स्पेस लुक्स गुड, पैसा बन सकता है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है। बट अगेन वही बात हो गई सर, जो जूस निकलना था वो तो सारे बड़े प्लेयर ने जूस तो निकाल दिया। अब जो आएगा आपका एक स्केल से आएगा, तो यू नीड टू मॉनिटर रिगरसली द एग्जीक्यूशन पार्ट। फेयर पॉइंट। और मीट, ये जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स या बीट फॉर केटरिंग टू इंडस्ट्रियल डिमांड, और ये आपका हाइड्रोजन स्टोरेज वगैरह, तो ये पॉकेट्स का बहुत बात हो रहा है और दोज कंपनीज आर आल्सो गोइंग। राइट सर, अभी तो राइट अभी सर, स्टडी अभी नहीं तो कर रहा हूँ मैं, मतलब आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड बैंडविड्थ, तो अभी तो पावर सेक्टर पे ही ज्यादा काम चल रहा है, तो उसी पे ज्यादा फोकस है। कुछ अच्छा निकल के आएगा तो यू नो वी विल बी एबल टू फाइंड, इफ वी विल एबल टू फाइंड एनी गुड अपॉर्चुनिटी, तो कोई अच्छी बात है। बाकी ये सारे सेक्टर तो सर अभी ट्रैक ही नहीं किया, हाथ ही नहीं लगा, समझे ही नहीं है क्या है। समझने में ही 4-4 5-5 महीने निकल जाते हैं सर। very good. So, Meet, I think more or less we had covered pretty well about the current market situation and the pockets looking good, and the areas which you are studying and how you are placing yourself. So, definitely at some point in time, maybe when you will be like through studying the sector, power sector or other sectors, so definitely will come again for a session with you. श्योर So, anything to say before we conclude for the day? सर, मतलब कीप वॉलेटिलिटी इन माइंड सर, मतलब दिस इज द मार्केट। अगर आपने अच्छा अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट कर लिया सर तो स्टे इन्वेस्टेड, मतलब
अगर आपको लॉन्जिविटी दिख रही है ना सर, तो ये आपका एड्रेस बदल सकता है सर ऐसे मार्केट में। एंड आई हैव सीन पीपल 2019-20 में जिसका पोर्टफोलियो नॉट इवन 10, 15, 30 lakhs का था, आज 2-3 करोड़ रुपए। आई हैव सीन पीपल 10x सर पोर्टफोलियो लेवल पे करना, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। आई हैव सीन पीपल 4-5 डील अच्छी हो गई सर, मतलब कंपनीज अच्छी मिल गई एंड पूरा एड्रेस चेंज हो जाता है सर। तो ऑल इन ऑल जस्ट स्टे इन्वेस्टेड सर। मतलब सी सर, ज्यादा नहीं बट एक लाइन बोलूंगा, जो भी मेहनत कर रही है ना वो गवर्नमेंट कर रही है, हम उसका बहुत अच्छा फल खा रहे हैं। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में पैसा बनाया है जिसमें हम सोच ही नहीं सकते कि इतने छोटे टाइम फ्रेम में इतने बड़े मल्टीपल्स बन सकते हैं इसमें। वो अपने हाथ की बात नहीं, वो मार्केट की बात है। मार्केट में अभी ये सारे सेक्टर्स को रेगुलेशन का बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो स्टडी द रेगुलेशंस, डू ग्राउंड वर्क रिसर्च, जहां पे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो देखो, जहां पे बैंकरप्सीज हो रही है वो सबसे पहले देखो, क्योंकि उसमें इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो जाएगी, प्लेयर्स बहुत कम रहेंगे, वहां पे थोड़ा भी डिमांड सिनेरियो इंप्रूव होगा, यू विल गेट अ बिग री रेटिंग। बिग री रेटिंग, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों बढ़ेगा सर। तो फोकस ऑन सच एस्पेक्ट। दिस इज द बेस्ट टाइम इंडिया में। स्कटल बट करो, ज्यादा मेहनत करो, अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, अच्छे प्रमोटर्स मिलेंगे, हार्ड वर्किंग प्रमोटर्स मिलेंगे। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द टेलविंड्स। और सर आप चर्निंग भी कर रहे हो ना, देन ऑल्सो बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, तो आप रेगुलर चर्न भी करोगे ना, फिर भी आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। यू जस्ट डोंट हैव टू रिलाई ऑन दैट, मतलब पैसिव अप्रोच नहीं रखना है। 4-5 साल अच्छा अप्रोच करोगे, इतना अच्छा चेंजेस हो रहा है सर, एंड फास्ट चेंज हो रहा है सर, दबा क्या पैसा बनेगा। just stay put and work extremely hard, monitor rigorously. 100% आई एग्री टू योर स्टेटमेंट मीत कि अभी जितना मेहनत कर लोगे तो यू कैन change your net worth, leave aside doubling tripling money, you can make it multifold for sure. और स्कटल बट को लेके लोगों को काफी ये रहता है कि भाई हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आजकल इंडस्ट्री अक्रॉस द कंट्री आपको मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आसपास के एरिया जहाँ 2-4 घंटे से ज्यादा का ट्रेवल होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे आजकल इवन ऑन ट्विटर देयर आर मेनी पीपल हु वुड हैप्पी टू लाइक ज्वाइन यू गाइज। अगर आपके एरिया में कोई कुछ अच्छा काम हो रहा है या कुछ है तो डेफिनेटली वो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। और इंडिविजुअल स्टडी को तो देखो इनएस्केपेबल है, अगर आपको पैसा बनाना है तो स्टडी और कन्विक्शन तो आपकी होनी चाहिए। दूसरे पे एक आध बार बन जाएगा बट स्ट्रक्चरल वे में पैसा नहीं बनेगा। तो विद दैट नोट लास्ट में भी एक बार डिस्क्लेमर दे देते हैं कि मीत भाई ने जो भी नाम बताए हैं उनमें हो सकता है कि मैक्सिमम में इन्वेस्टमेंट हो, कुछ में ना हो, बट अगेन द आइडिया वाज टू एजुकेट यू अबाउट हिज थॉट प्रोसेस। इंडिविजुअल व्यूज है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इनके लिए जो वैल्यूएशन चीप हो वो एक्चुअल में हो ना हो, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसको स्पेसेस को स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलो। कुछ आपको स्ट्रक्चरली कोई सेक्टर कोई आइडिया अच्छा लग रहा है तो अपनी ड्यू डिलिजेंस करो, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लेना या फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के डिसीजन लेना। थैंक यू सो मच मीत। Thanks brother, thanks. गुड नाइट, टेक केयर।